इस पायत की परमिशन, दिल्ली में घुसने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी होती है। दिल्ली कोई फिलिस्तीन या गाजा है जहां पर घुसने के लिए परमिशन की जरूरत होगी? परमिशन दिल्ली में एंट्री की किसके लिए थी? Any processor. This is not a process. FAQ. If the FAQ is there. No, what type of FAQ you are talking about? No, you are prohibited us because we belong from the scheduled caste community and we are going inside Delhi and you are curtailing our fundamental rights. This is your perception. No, this is not my perception because if you are saying you give me anything in return, This sir. is merely an allegation. No, this is not allegation. When you have stopped that entire crowd because of you are saying that senior officers has given you the action, you give us in writing that I am not allowing you to enter inside the Delhi border. I'll obey. You have to obtain the permission for that. No, for what kind of permission you need? For what kind of camera शुरू करूँ? Because they are recording, you should also record. What kind of permission you need? Ask to our senior officer. No, to whom? Sir, you are here. Sir, you are here. I am not Sir, answerable. no. Yes, you are not answerable for me. But I have right to ask you under which law you are prohibiting ourselves to enter inside Delhi. Sir, there are lawful directions. We are following that. So who has given you the action? Only for that because they Buddhist and scheduled caste community persons are coming inside and you are making it. How come they have reached here? Huh? If you are merely by making walk? an allegation, No. how come they have reached here? If it they- is so, No, they are coming from Uttar Pradesh. this is merely No. Don't disturb the peace and tranquility. Sir, I am no. you are You doing have so. right. You have right. You have right You are to disturbing take the action peace against and me. No. tranquility. So you have Everybody right. is fine here. You are using the wrong word at the wrong time. No, I am not. I am using right words because I am asking permission, written permission from yourself. You are saying that I should talk to the senior officer. Go and ask to the whom? concerned senior officer. See, They are who? they are reaching. I- They are reaching. You should ask them. Yes. I have right to ask to everybody. Either the senior. Let us do the lawful job. No, we are not creating any illegal. Okay. दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज भोपरा बॉर्डर पे जो कि हर्ष विहार के बिल्कुल पास पड़ता है। दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है वो हर्ष विहार के पास भोपरा बॉर्डर है। ये जो मेरे पीछे है और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक तरीके से घटना ही कहेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध जो विदेशों में भी ये कहा जाता है अगर कोई जाता है तो वो ये कहता है कि मैं भारत की धरती से आया हूँ। उसी भारत की धरती के बुद्ध जो हैं उनकी यात्रा जो है वो रोक दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 10 दिवसीय ये यात्रा थी और ये यात्रा रोक दी गई है और इस यात्रा की परमिशन नहीं मिली है, जिसमें कि कावड़ वालों को परमिशन मिल रही है, जिसमें कि जागरण वालों को परमिशन मिल रही है, जिसमें कि आप अगर वैष्णो देवी या हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं के बारे में अगर कोई यात्रा भी निकालते हैं तो उनकी परमिशन यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बुद्ध अनुयायी हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु भी हैं, उपासक गण भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो पहुँच चुके हैं। हवाला ये दिया जा रहा है कि परमिशन नहीं दी गई है। आखिर परमिशन क्यों नहीं दी गई? क्योंकि 1.5 महीने पहले से ही परमिशन के लिए बात हुई थी और इस धम्म यात्रा को रोकने के लिए पूरा प्रशासन जो है वो इनके पीछे बैरिकेडिंग लगा करके पूरा खड़ा हुआ है। मामले की और जांच करने की कोशिश करते हैं। सर क्या मामला था, क्यों अभी तक परमिशन नहीं मिली है? पता नहीं, हमने तो कई दिनों पहले है परमिशन के लिए एप्लीकेशन जमा की थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये हमें परमिशन नहीं दी है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमें परमिशन मिलनी चाहिए और सभी साथियों का हमारी पद यात्रा सफल होनी चाहिए। जी आप कहाँ से आए हैं? ये यात्रा कहाँ से आ रही है? ये नगलत से आ रही है। नगलत से लखनऊ से। कहाँ से आ रही है? काशीपुर उत्तराखंड से। काशीपुर उत्तराखंड से। इसमें जो ऑर्गेनाइजर है क्यों नहीं दे रहे हैं ये? किस पायत की परमिशन? दिल्ली में घुसने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी होती है। दिल्ली कोई फिलिस्तीन या गाजा है जहां पर घुसने के लिए परमिशन की जरूरत होगी? लोग हैं कहाँ से आए? ये दे आर क्लेम ये भारत के लोग नहीं है? ये नहीं सोचे कि भारत के लोग हैं। अगर ये कह रहे हैं कि मैं इलीगल काम कर रहा हूँ और मैं अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पीस को बिगाड़ रहा हूँ, तो मैं बुद्धिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मुझे पुलिस से मेरा लॉफुल जो एक्ट है उसे अडॉप्ट करने से पुलिस नहीं रोक सकती। आप ये कह रहे परमिशन, दिल्ली में घुसने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी ये जो SHO साहब है कि सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं और बैरिकेड लगाए, आप मुझे डिटेन करेंगे, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए इलीगल थिंग्स, दिस इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
And if any police officers is saying that I am not maintaining the law and order, you have right to detain myself. You should lodge FIR against me. I have right to ask from each and every police officer that under which provision and which law they are prohibiting Buddhist and scheduled caste people to entering inside the Delhi. इन्होंने जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, या ये किस एलिगेशन के तहत ये एंट्री नहीं होने दे रहे? नहीं, वो एलिगेशन इनका जो नहीं, इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, इन्हें पता है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आए हुए लोग हैं, ये जैसा हमें पढ़ाएंगे हम मान लेंगे, ये हमें कहेंगे रुक जाओ तो रुक जाएंगे। ये इनके पास अगर ये आज हमारा यहाँ पर राइट कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो इंडिया के लोग नहीं हैं, इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि ये बुद्ध का देश है, और ये दिल्ली के अंदर घुसने के से पहले अगर बुद्ध के अनुयायियों को रोक रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक और शेमफुल बात है पूरे भारत के लिए, भारत नहीं दुनिया के लिए। नहीं, आगे की कार्रवाई अभी ये कह के गए हैं कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, अगर वो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं तो ठीक है, वरना कल यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि शायद दिल्ली का हर बुद्धिस्ट व्यक्ति इस यहाँ पर खड़ा होगा। और ये मुझे इस बात को कह रहे हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बीइंग ए लॉयर आई हैव राइट टू आस्क एवरीथिंग फ्रॉम दी SHO। यहाँ पर अभी कावड़ यात्रा भी गई है माँ की। नहीं, देखिए हमें किसी से ना तो कावड़ से हमें कोई आपत्ति है, ना ही किसी रिलीजन से हमें कोई उनको तो ये रोक नहीं रहे ना। अगर कोई देखिए ये कहते हैं कि परमिशन, लॉ ये कहता है दिल्ली में घुसने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कालका जी मंदिर जाने के लिए इन्होंने पूरी छूट छोड़ी हुई है, बसें निकल रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं, टेम्पो निकल रहे हैं। नहीं देखिए, तो मैंने आपको बताया ना कि इन्हें पता है कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, इन लोगों को जिस भी प्रकार से यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाए और हम इन्हें नहीं घुसने देंगे। दिल्ली इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन एट ऑल। ये हमारी भी दिल्ली उतनी है जितनी इन लोगों की है, और अगर ये सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर ये नहीं घुसेगी, तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि दिल्ली के अंदर यात्रा अब घुसेगी। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिछले तकरीबन 4 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और ऑलरेडी काफ़ी समय पहले ही कमिश्नर साहब को सूचना दे दी गई थी कि आज के दिन दिल्ली में यात्रा जो है आएगी। और जितने भी आप तमाम लोगों को देख रहे हैं, हम सभी के सभी बुद्धिस्ट लोग शांति का एक मैसेज लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, जितने भी हैं धम्म उपासक हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आए, हम लोग बीच में पुलिस वालों ने, मतलब यूपी में उत्तराखंड से यहाँ से चली आ रही है यात्रा, और इतने बढ़िया तरीके से सब लोगों ने कोऑपरेट किया, पुलिस वालों ने भी इतना सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही हम दिल्ली, जो देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में एंट्री करने के लिए यहाँ के जो भी पुलिस फोर्स है, मतलब हम लोग शांति दूत, मतलब यहाँ के लोग जो हम आए हुए हैं, उनके पहनावे से भी लगेगा कि ये एकदम शांति पद यात्रा लेकर आ रहे हैं। हमें देखकर इन्होंने ऐसे कोई साउंड वाउंड भी लेके चल रहे थे, अब बड़ा साउंड वगैरह? नहीं, कोई बड़ा साउंड नहीं है हमारे पास। हम सब लोग आ रहे हैं, और हमें देखते ही ये बैरिकेटिंग, ये पुलिस की बैरिकेटिंग, जैसे कि हम पता नहीं क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम आंदोलन कर रहे हैं। हम केवल एक शांति का संदेश लेकर के यहाँ आए हैं। तो ये बहुत ही गलत जो है दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये बहुत ही गलत और गैर व्यवहारिक रवैया हम लोगों के साथ अपनाया जा रहा है, जो कि एकदम इलीगल है, गैर कानूनी है, जिसका हम विरोध करते हैं। आपने क्या परमिशन नहीं ली थी जो इन लोगों ने आपको रोक दिया यहाँ पर? देखिए मिलेंद्र जी, मैं आपसे बता दूं, मैं गाजियाबाद गया। गाजियाबाद मेरे को, मैं नगर मजिस्ट्रेट के पास गया, शुभांगी शुक्ला जी के पास। उन्होंने मार्क किया कि आप ACP के पास जाइए। तो गाजियाबाद से, वहाँ से जहाँ से हमने रूट दिया था, उस रूट से लेकर के यहाँ तक 6 ACP हैं। 6 के 6 ACP ने, सिर्फ मैंने उनको लेटर दिया, उन्होंने कहा जी आप घर जाइए, आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको हम भेज देंगे परमिशन। उन्होंने परमिशन 6 की 6 परमिशन ये मेरे पे पूरी रेडी हैं, गाजियाबाद की 6 परमिशन पूरी रेडी हैं। और उसके बाद ये देखिए, जिला मजिस्ट्रेट को पहले मैंने ये लेटर दिया था, ये जिला मजिस्ट्रेट ने मार्क किया कि आप ACP से परमिशन लीजिए। पहले मैंने नंदग्राम ACP से परमिशन ली, मसूरी से परमिशन ली, वेब सिटी से परमिशन ली, उसके बाद में फिर मैंने साहिबाबाद से परमिशन ली, कभी नगर ACP से परमिशन ली, उसके बाद फिर मैंने ये साहिबाबाद और ये शालीमार गार्डन ACP सब ने परमिशन दी मेरे को। 6 की 6 परमिशन मेरे पर पड़ी हैं। अब 26/9/23 को हमने एक लेटर डाला था कमिश्नर को, LG को भी डाला है। उन्होंने कहा, मैं DCP ऑफिस में 3 बार गया, नॉर्थ DCP सिविल लाइन, उन्होंने कहा आपको परमिशन मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। 3 दिन में गया, 3 दिन बैठ गया, उन लोगों के सबके मेरे पर नंबर भी हैं। ये
HAX डिपार्टमेंट है जहाँ से परमिशन मिलती है, उनका ये लैंडलाइन नंबर है, उनका ये फ़ोन नंबर है। अनिल कुमार जी SI हैं, उन्होंने मुझे नंबर दिया, सुनील जी ने नंबर दिया, मैंने इनसे बात करी, कह रहे परमिशन हो जाएगी। सिविल लाइन SHO का मेरे पास कॉल आया, सिविल लाइन यूपी के थे या दिल्ली के थे? यूपी की मेरे को मिल गई, ये दिल्ली का है, ये दिल्ली का है, ये दिल्ली कमिश्नर का है, ये वाला ये संजय अरोड़ा IPS अफसर, हाँ पुलिस आयुक्त महोदय को, इनको ये दिया और इसको भी मार्क करके भेज रखा है परमिशन के लिए, लेकिन परमिशन नहीं दी। ये एक मानसिकता गंदी है कि परमिशन नहीं दी, 1.5 महीने से उसको लेटर को रोक रखा, हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अपने आप इस चीज़ की परमिशन देनी चाहिए, जैसे यूपी ने कैसे दे दी। तो परमिशन क्यों नहीं दी? आपके पास कोई बड़ा माइक वगैरह साउंड वगैरह है, या हज़ारों की तादाद में लोग हैं, या गाड़ियां हैं, या साउंड इतना लेके चल रहे हैं आप लोग? क्या सिर्फ हमारे पास में 30 से 35 व्यक्ति हैं, पैदल हैं, कोई साउंड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास में छोटा हल्का सा बस छोटा सा कॉलम है म्यूजिक, बोद्धम शरणम गच्छामि की, उसमें धुन चलती रहती है, बाकी हमारे पास में कुछ है नहीं, शांति प्रिय, सब एक लाइन में चल रहे हैं। हम अपने वॉलंटियर खुद यूज कर रहे हैं, बाकी हमारा पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रशासन ने पूरा साथ दिया, शासन ने भी साथ दिया, लेकिन दिल्ली का शासन प्रशासन इतना गैर रवैया अपनाया हमारे साथ में कि शासन ने साथ नहीं दिया ना प्रशासन ने साथ दिया। तो यहाँ पे आकर के हमारी ये यात्रा जो रोकी भोपरा बॉर्डर पे, जबकि हमने रूट दे रखा है लिखित में, सारे मिले हुए। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली की राजधानी जहाँ हर कोई अपनी बात लेकर आता है और एक उम्मीद की जाती है कि हाँ हमारी बात सुनी जाएगी, और हमें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया और हम अपनी बात नहीं लेके जा रहे, हम लेके जा रहे हैं तो मगर रुक गए, तो वही कह सकते हैं कि बहुजन की आवाज़ को दबा दिया गया। भाई यही। आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे या जोर जबरदस्ती से आगे बढ़ेंगे? अभी तो बिल्कुल हमारा शांतिपूर्ण रवैया है बिल्कुल, और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं और देखिए आगे किस तरीके से हमें फॉलो अप चल रहा है, अभी देखते हैं क्या जवाब आता है, तो हम अभी इंतज़ार करेंगे। जी बिल्कुल। आर्या जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप ऑर्गेनाइजर हैं पूरे इसके, क्या कहना चाहते हैं? क्या परमिशन वगैरह नहीं मिली है, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं ये लोग? सर हमने उत्तराखंड में परमिशन के लिए लेटर दिया था, तो उत्तराखंड के प्रशासन ने हमें परमिशन दी। हमने मुरादाबाद में परमिशन के लिए लेटर दिया था, मुरादाबाद के प्रशासन ने हमें परमिशन दी, और अमरोहा के प्रशासन ने हमें परमिशन दी, हापुड़ के प्रशासन ने हमें परमिशन दी, गाजियाबाद के प्रशासन ने परमिशन दी। हमने दिल्ली में भी कमिश्नर साहब को लेटर दिया था परमिशन के लिए लगभग 1.5 महीने पहले, और उपराज्यपाल महोदय को भी हमने सूचना दी थी विश्व शांति संदेश पद यात्रा की, और पुलिस प्रोटेक्शन की उनसे मांग भी की थी लगभग 2 महीने पहले, लेकिन उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। तो इलीगल रवैया तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ अपना रही हैं और पूरा ये संविधान का और कानून का उल्लंघन कर रही हैं। जी, आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर पहुँचनी थी लास्ट? सर हमारी यात्रा बुद्ध स्थल काशीपुर से स्टार्ट हुई थी, गोविशान टीला से, और ये यात्रा आज मीत नगर में रुकने वाली हैं। और पहुँचेगी कहाँ पर और कौन से दिन? अंबेडकर भवन पे पहुँचेगी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर जी। आप देख ही सकते हैं कि पीछे बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, और बैरिकेडिंग के पीछे जो है वो पूरा रथ लगाया हुआ है। पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर पूरा तैनात हो चुका है, और किसी भी बुद्धिस्ट व्यक्ति को यहाँ पर उस धम्म यात्रा में जाने नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, पुलिस प्रशासन मानता है या नहीं मानता।